That I'm audible. Yes, sir, audible. Mhm. Okay, very good. So let us continue with a discussion of the protection schemes. It is what we will do today. We shall look at directional over current protection, and then hopefully we shall also start with the differential protection scheme as well, at least the basics of it. So if you look at directional over current protection, the why is it needed to begin with? Let's. I will just give you a simple diagram, and I hope that would clarify matters. We have been looking at systems which have had this structure. There have been multiple load points and multiple line sections, and there has been only a single feeding point, what is known as a radial scheme. In the last few lectures, we have been trying to understand how do we design such a system using either DTOC relays or IDMT relays or whatever. We saw that basically the idea is to look at a circuit breaker. So I will put a circuit breaker here. Let me call it A. This is B. This is C. Okay. So we place circuit breakers at the bus points, which are rather at the buses which are connected directly or indirectly to the generator. If there was a fault, so for example, if I create a fault here, let me REQRL8. Okay, so if there is a fault here, for example, at this position, uh, fault current flows through here. We know that if we design this system, let's call this circuit breaker A, this is circuit breaker B. In the last few classes, we have seen how do we go for the CT ratio, how do we decide the CT ratio, and then how do we go for the uh, plug multiplier setting, and how do we use the time multiplier setting of the relays. So I have not shown the relays here, but hopefully you will be able to follow that. If there is a fault here, let's call it F. The fault current flows to the main system, then it flows to the line section AB, then it goes to the line section BF, and then finally terminates into ground. Is that clear? Uh, so we expect, and we have in fact designed our system to behave in such a manner that this circuit breaker trips. Okay. Before the circuit breaker trips, okay, this should be A and this should be B. That is to say, circuit breaker B will trip before circuit breaker A if I have properly designed it and all that. What will happen if the so uh, there is a fault here? This circuit breaker gets tripped out. If this circuit breaker opens, the fault current is interrupted, and therefore there is no fault current anywhere in the system. Uh, if I have a load connected here, let me use a black marker. This load continues to be supplied normally. This load also continues to be supplied normally, whereas this load, the load at C, this gets disconnected because if this circuit breaker opens, line section BC gets taken out of service. Okay. Let us see if we make a slight change to the system. Instead of making it a radial system, let's see what happens if instead we have a doubly fed system. Now, why am I showing this? Because in some cases, not all cases, especially in the sub-transmission network, maybe at 33 kV and perhaps at 66 kV as well, we don't have a radial system, but rather we have a system in which we have multiple points or multiple sources which are geographically separate from each other. So you have this part of the power system is supplying this network at point A, and this part of the power system is supplying this network at point C. I forgot to record. एक second, मुझे recording start करने दो. Okay. So what will happen? So again, let's try to understand if I continue with this original configuration. If there is a fault here at F, uh, okay, if there is a fault here at F, this circuit breaker will get tripped out. This line section gets is this line section isolated? कोई मुझे जवाब दे सकता है? If this circuit breaker trips, is line section BC isolated? Isolated का मतलब है it is not, there is no current flow there. Anyone? Can anyone answer that? कोई जवाब दे सकता है? अरे कोई है? अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर, एक सेकंड.
सर रिपीट कीजिए। ओके जासिरा, ये है कि हमारे पास जो अभी तक हम सिस्टम पढ़ रहे थे उसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल जनरेटर और सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी, आई एम कनेक्टिंग टू सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. I have again simulated a fault maybe somewhere between bus B and bus C. ये मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर B, because of which is this line section BC यहाँ से लेकर यहाँ तक, is it isolated? Isolated का मतलब है has all current flow stopped in this line section BC? Has जो हमारा short circuit point है, fault नो point, सर, ये फेड बोर्ड can you repeat that? No, sir. जैसे आपकी आवाज कट बीच में आपकी आवाज कट के आ रही है. आप फिर से ट्राई करोगे जासिरा? हेलो हेलो जासिरा? जी सर, इट्स फेड फ्रॉम बोथ द एंड्स. वहाँ पे आइसोलेटेड नहीं होगा, वो जो ए बी वाला साइड है वो उससे आइसोलेटेड वाला नहीं होगा आइसोलेट. हाँ, आई मीन इट्स कॉमन सेंस. हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस. इट इज नॉट बीइंग फेड प्योरली फ्रॉम दिस एंड जो हम दिखा चुके हैं, इट इज आल्सो बीइंग फेड फ्रॉम दिस एंड. ठीक है. सो इफ यू हैव अ स्कीम लाइक दिस, अपने जो IDMT DTOC हमने पढ़ा था, you trip the circuit breaker here, circuit breaker B, ये वाला जो आपके पास फीडिंग पॉइंट है, that is disconnected. No current flow can flow like this, ना, मतलब from this side. On the other hand, this side is still connected and therefore fault current continues to flow, and if fault current continues to flow, obviously the system gets destroyed. In other words, ऐसा स्कीम नहीं चलता है, मतलब इन द सेंस कि अगर आप देखोगे इसमें खामी क्या है, इसमें खामी है कि जो हमारे पास ये लाइन सेक्शन BC है ना, उसमें खाली हमने इस जनरेटर के साइड पे सर्किट ब्रेकर्स लगाए. But because fault current can also flow in the opposite direction, we also have to connect circuit breakers at the opposite end of the line. In other words, we have to place circuit breakers here. We have to place circuit breakers here as well. Is that clear? आपको आया समझ? In other words, in practice यही किया जाता है जो हमारे पास खास तौर पे जो ट्रांसमिशन नेटवर्क वगैरह में आप देखोगे, if there is anything, मतलब कोई भी आपके पास अगर कोई भी कंपोनेंट होता है, खा वो ट्रांसफार्मर हो, खा वो ट्रांसमिशन लाइन हो, खा वो बस बार हो, कुछ भी हो, इट उसके दोनों एंड्स पे हमें सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस लाइन सेक्शन BC, it starts in a circuit breaker, it ends in a circuit breaker. In the same way, if you look at this bus B, to the left of it has a circuit breaker, to the right of it has a circuit breaker. Indeed, यहाँ पर जहाँ लोड जा रहा है वहां पर भी एक सर्किट ब्रेकर होगा. I have not shown it here. Reason is quite simple, क्योंकि हमारे पास multiple routes हैं जहां से fault current flow हो सकती है. To ensure that if there is a fault current, that fault current is terminated completely, we have to use this kind of a scheme. Is that clear? So hopefully that's clear. Let's see what is the problem now. हमने देखा कि if we have a system, even a very simple system which has two line sections and two feeding points, we require the services of multiple circuit breakers. Okay, so we have a circuit breaker here, we have a circuit breaker here, this is A, this is B, and let's call this C. There's a circuit breaker here, ये अपना circuit breaker है. Again, when I use the word circuit breaker, I'm talking about circuit breaker plus उसका जो associated relay है. I have not shown it. So for example, at this point, these two circuit breakers are typically controlled by the same relay. Same is true for these two circuit breakers because they're connected to the same bus. ठीक है? So यहाँ पर आप देखो what is the problem now. Let's assume there is a fault current, there is a fault rather, at this point, very close to this circuit breaker. ठीक है? Let me use some numbering. Okay. ये सर्किट ब्रेकर अपना 1 है, ये सर्किट ब्रेकर 2 है, दिस इज सर्किट ब्रेकर 3, दिस इज सर्किट ब्रेकर 4, दिस इज सर्किट ब्रेकर 5 एंड दिस इज सर्किट ब्रेकर 6. What will happen? क्या होना चाहिए?
if there is a fault section on the line section, sorry, there is a fault somewhere on the line section BC, कौन कौन सा circuit breaker trip होना चाहिए, open होना चाहिए? Anyone? If there is a fault section here in the line section BC, कौन कौन सा breaker trip होगा? अरे जवाब तो दो. 4 and 5. Yeah, this one will trip, this one will trip. So far so good, we seem to be successful. हमने जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ द फॉल्ट इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम एंड इंश्योर दैट देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ डिसरप्शन. सिलेक्टिविटी अपनी होनी चाहिए. खाली हम लाइन सेक्शन बीसी को इंटरप्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये जो बाकी लोड वगैरह हैं, दोज आर नॉट इफेक्टेड. इज दैट क्लियर? बट यहाँ आप देखो, इफ देयर इज अ फॉल्ट हियर, कौन सा ट्रिप होना चाहिए? If you look at the yellow colored fault rather, 2 and which 3. huh? 2 and 2 and 3. yeah, so 2 should trip and 3 should trip. So if there is a fault in the line section AB, 2 and 3 should trip. If there is a fault in the line section BC, 4 and 5 should trip. ठीक है? अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर. प्रॉब्लम ये है कि if there is a fault, यहाँ पर आप देखो, if there is a fault somewhat here, तब भी 2 and 3 trip होना चाहिए. Anywhere to the slightly to the left of the third circuit breaker, 2 and 3 आपका trip होना चाहिए. अब यहाँ पर आप देखो, compare these two faults. ठीक है? ये जो आपकी fault है, maybe I will use a different colored pen. ठीक है? जो आपका ये लेफ्ट येलो कलर का फॉल्ट है, इट इज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर 3. ये जो आपका ब्लू कलर का फॉल्ट है, इट इज स्लाइटली टू द राइट ऑफ सर्किट ब्रेकर 4. एंड रिमेंबर, बोथ सर्किट ब्रेकर 3 एज वेल एज सर्किट ब्रेकर 4 आर एट बस बार बी. उसका मतलब ये है कि उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है. यहाँ तो आपको लग नहीं रहा है, बट ये लाइन सेक्शन हो सकता है 1 किलोमीटर का होगा. इनके बीच में मे बी कुछ 100 फीट का फर्क है बिटवीन 3 and 4. What happens is, because this blue fault is very close to this yellow fault, ठीक है? The fault current here is very close to the fault current here, ठीक है? Because they are almost at the same point. इनके बीच में maybe a couple of feet, 100 feet का फर्क है, whereas the overall system from 1 to 6 can have a distance of many kilometers. If the fault currents are the same, and we have designed our system in such a manner that if there is a fault here, जो आपका, if there is a fault current here, both 2 and 3 should trip, because this blue fault current is almost the same as this yellow fault current. 2 and 3 will also trip, even though the fault is here at some location between 4 and 5. So what will be the consequence? So if let me go back to green now. There is a fault here, very close to bus number B, but slightly to the right of the circuit breaker, because of which not only will 4 and 5 trip, but also 3 as well as 2 will trip. उसका मतलब क्या है? This line section is taken out of service, this line section is taken out of service, whereas we would have expected only line section BC to be taken out of service. Is that clear? So it is here that we get the impetus to use what is known as a directional relay. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जो आपके पास सर्किट ब्रेकर 3 है ना, और जो उसका एसोसिएटेड रिले है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो येलो फॉल्ट है स्लाइटली इसके लेफ्ट की तरफ, और जो आपके पास ये जो ब्लू फॉल्ट है विच इज टू इट्स राइट, इनके बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है. रीजन है कि अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल जो आपके पास आईडीएमटी रिले था, या जो आपके पास डीटीओसी रिले था, दैट वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट. ठीक है? फॉल्ट करंट आपकी पिकअप वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है, खाली वही चेक किया जाता है. बाकी उसमें कुछ नहीं देखते हैं कि फॉल्ट करंट की डायरेक्शन क्या है. यहाँ पर अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट फॉर द मोमेंट मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाता हूँ, मैं खाली यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ. लेट मी जस्ट लुक एट सर्किट ब्रेकर बी और जो उसका एसोसिएटेड रिले होता है. ठीक है? यहाँ पर आई विल क्रिएट वन फॉल्ट टू इट्स लेफ्ट and I will create another fault to its right. ठीक है?
रिमेंबर जब IDMT या DT सीरियली ऑपरेट करता है ना, वो करंट को देखता है. करंट को कैसे देखता है? इट ऑब्जर्व्स इट बाय बेसिकली यूजिंग अ CT. ठीक है, सो देयर इज अ CT हियर दैट इज ऑब्जर्विंग द करंट. सो यहाँ पर आप देखो, इफ देयर इज अ फॉल्ट slightly to the left of the circuit breaker with respect to the circuit breaker and its associated current transformer and hence relay and all that, fault current flows like this. ठीक है, आप यहाँ देखो, इधर यहाँ पर फॉल्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट ब्रेकर फॉल्ट यहाँ से फ्लो हो रहा है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ it's somewhat to the right at this point with respect to this circuit breaker, fault current will flow like this. So even though magnitudes of the two fault currents with respect to this breaker and इसका associated जो CT है, what is the breaker? I'm talking about breaker number 3 and CT and all that of 3. Even though the fault current magnitudes are more or less the same, the directions with respect to the CT arrangement is completely different. If you look at this fault, the yellow fault, यहाँ पर जो आपके पास fault current है ना, with respect to this circuit breaker, it is moving out of the bus. And अगर यहाँ पर आप blue fault create करते हो with respect to third circuit breaker, it is moving into the bus. So you have basically two directions possible. You can have fault into the bus, you can have fault out of the bus. Is that clear? ठीक है, ये आपके पास bus है, bus number B. With respect to that bus, you can have a fault current into the bus or out of the bus. So yellow is out of the bus, blue is into the bus, sorry. So if there is a fault current here, ये जो आपके पास blue fault है, ये आपका circuit breaker 3 trip नहीं होना चाहिए. In other words, whenever a circuit breaker and hence its CT and all that sees a fault with respect to itself, the fault current is moving into the bus, वो trip नहीं होना चाहिए. On the other hand, अगर आपका जो सर्किट ब्रेकर प्लस CT स्कीम है उसको नजर आएगा फॉल्ट दैट इज मूविंग आउट ऑफ द बस, वो ट्रिप होना चाहिए, बिकॉज उसका मतलब है फॉल्ट इज समवेयर टू इट्स लेफ्ट, इट्स इन इट्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो इट इज हियर दैट वी यूज व्हाट इज नोन एज अ डायरेक्शनल रिले. जैसे आपको होपफुली समझ आया होगा, दिस इज डायरेक्शनल रिले. का नाम डायरेक्शनल क्यों होता है? डायरेक्शनल रिले का नाम डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि ये खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है आपके करंट की विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू बस. लेकिन बस क्या है? बस इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू बस वोल्टेज. इज दैट क्लियर? रिमेंबर, अब आप बोलोगे सर ये तो इनटू है, आउट ऑफ है, तो द एंड प्रॉब्लम इज ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं. जो हमारी एक्चुअल करंट है ना, दैट इज साइन वेव. वो अगर हाफ साइकिल के लिए इनटू बस है, हाफ साइकिल के लिए आउट ऑफ बस है, तो ये डीसी के लिए तो सिंपल है कि ना इनटू और आउट आप करो. बट हाउ डू वी डू दैट इन द केस ऑफ ए, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, ऑफ अ ये ना, ये क्या कहते हैं इसको, फॉर एन एसी सिस्टम. ठीक है, लेट अस सी. I'm so sorry. Okay, so this is the basic idea. We have the operating torque of a directional relay is given by this. It is a voltage seen by the pressure coil. Actually, the potential क्या नाम है इसका, क्या नाम था, potential transformer. Current seen by the current transformer, cos of angle between the two minus theta minus tau. ठीक है, ये जो tau होता है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क एंगल. इसको क्यों कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क एंगल, अभी हम देखेंगे. ठीक है, थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. अब बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग टॉर्क क्या है, ये क्यों है, ऑल दैट क्या है? अगर आप देखोगे, लुक एट दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, वोल्टेज मैग्नीट्यूड इनटू करंट मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ समथिंग. इसका जो फॉर्म है, इट इज समवट रेमिनिसेंट ऑफ रियल पावर, इट इज समवट रेमिनिसेंट ऑफ रिएक्टिव पावर. उसमें भी हमारे पास वोल्टेज करंट को हम साइन या कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं. यूजुअली थीटा ही होता है, बट यहाँ पर हमारे पास थीटा के साथ साथ हमने एक मॉडिफाइंग फैक्टर यूज किया हुआ है, टाउ. ठीक है, सो अगेन
nowadays हमारे पास कोई टॉर्क वगैरह नहीं होता है या कोई फोर्स वगैरह नहीं होता है. जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं दोज आर प्योरली न्यूमेरिकल, दोज आर प्योरली कंप्यूटर बेस्ड. ये सिग्नल जनरेट की जाती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था. लेट्स गो बैक टू द सिस्टम दैट वी हैव बीन स्टडीइंग. ठीक है, ये तो चलो फोर्स की बात है, बट अगेन यू कैन ऑलवेज हैव अ सिस्टम वेयर इंस्टेड ऑफ अ फोर्स यू आर प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क. ये वाला हम सिस्टम देख रहे थे, 2-3 बार मैंने आपको दिखाया था. We have something like this, और ये सर्किट ब्रेकर कंट्रोल करता है. We have a solenoid जिसमें करंट फ्लो हो रही है. जो करंट फ्लो हो रही है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. फोर्स इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है. सिमल्टेनियसली वी हैव सम काइंड ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स दैट इज प्रेजेंट हियर. लेट्स कॉल दिस स्प्रिंग. ठीक है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग. ये जो हमारी करंट है जो यहाँ फ्लो हो रही है इन द सोलेनॉइड, इट प्रोड्यूसेस लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. वो इस आयरन को मैग्नेटाइज करते हैं. दिस इज आयरन. वो उससे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है. एज सून एज जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज एबल टू ओवरकम द इनर्शिया एंड इट्स एबल टू ओवरकम द स्प्रिंग फोर्स, आपका जो ये आयरन पीस होता है ये हिलेगा एंड अल्टीमेटली वो सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप. इन अदर वर्ड्स, आपका जो सिस्टम है उसको ट्रिप होने के लिए 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं. बेसिकली वो कंडीशंस क्या हैं? दैट दिस करंट शुड बी ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो आपका पिकअप लेवल होता है, प्लग सेटिंग भी जिसको कहते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि अनलेस द करंट इज लेस देन दिस पिकअप वैल्यू, ये जो आपके पास यहाँ पर फोर्स जो आप जनरेट कर रहे हो ना, दैट इज इनसफिशिएंट टू मूव दिस आयरन पीस. सो when I say that current has to be some minimum value, that is another way of saying that the force that is applied on this iron piece has to be some minimum value. ठीक है? And what is even more important is that this force should be in this direction. हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, मे बी 1-2 क्लास पहले, कि क्योंकि ये वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें करंट आपके पास AC हो कि DC हो, as long as hysteresis कम है आपके आयरन पीस के अंदर, force is always unidirectional. It is always towards the solenoid or towards the electromagnet. But if let's assume for some reason the force is in the opposite direction. If the force is in the opposite direction, instead of operating, the relay will in fact restrain. In other, restrain का मतलब it will not operate. Reason is very simple. अगर force उल्टी डायरेक्शन में है, स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में है, इंस्टेड ऑफ द कॉन्टैक्ट्स कमिंग क्लोजर, ये जो आपके पास यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, दे विल बी पुश्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इज दैट क्लियर? सो जो आपके पास मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कम से कम जो पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज थे उसमें फोर्स या टॉर्क जो होती थी उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए था? एक तो ये था कि जो आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू. ठीक है, that minimum value corresponds to the pickup level, जो भी आप कहना चाहते हो. And what is more important is that इसका कोई साइन होना चाहिए. So usually जिस डायरेक्शन में ऑपरेशन होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं. So if you come back here, if I take this direction to be positive, as long as the force is in the left hand side direction, आपका रिले ऑपरेट होने की कोई पॉसिबिलिटी है. On the other hand, if you have a force in the opposite direction, फिर वो कितना ही पावरफुल फोर्स ना हो, रिले तो आपका ऑपरेट नहीं होने वाला. सो दीज आर 2 कंडीशंस व्हिच एवरी रिले हैज टू सैटिस्फाई. द ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क जो भी आप कहना चाहते हो, इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू. ठीक है, यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम टू बाय सिंपली राइटिंग टॉर्क हैज टू बी ग्रेटर देन ऑपरेटिंग टॉर्क if this operating torque is positive. ठीक है, instead of talking of my absolute value. So moral of the story है कि टॉर्क जो आपके पास है, फोर्स जो आपके पास होता है रिले के अंदर, it should have some minimum magnitude and it should have a right direction. If it has a wrong direction, then relay will not operate. Is that clear? Let us see ये जो आपके पास सिस्टम है, for the sake of simplicity, I will क्या नाम है इसको जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको मैं 1 लेता हूं, बट ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज एडजस्ट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट.
ये आपका सिस्टम है। हम देखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस टॉर्क को क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड को क्या होता है और इसके साइन को क्या होता है? क्या ये पॉजिटिव बनता है, क्या ये नेगेटिव बनता है? जहां नेगेटिव बनेगा वहां रिले ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस सी। ठीक है, ये आपके पास है लेट्स अज्यूम, चूंकि यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, सो लेट्स अज्यूम ये आपके पास अलोंग द पॉजिटिव रियल एक्सिस आपकी वोल्टेज है। ठीक है, VPC। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन। इन अदर वर्ड्स, मैंने अज्यूम क्या किया है, जो मेरा वोल्टेज फेजर है उसका फेज एंगल क्या है? दैट इज 0 डिग्री, बिकॉज आई हैव ड्रॉन इट अलोंग द रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, देन let me draw this. Okay, someone saying something? Shahrukh, do you want to ask a question? Hello, Shahrukh? Hello? Okay, so this is a straight line. Hopefully you can see that this is a straight line which makes an angle of tau with respect to the positive real axis. Is that clear? Let me use green for the current. ठीक है, is this clear? Now यहाँ पर आप देखो, this is a positive entity magnitude, this is a positive entity magnitude. What about cos? cos के हमेशा पॉजिटिव होता है। cos कब जीरो होता है, cos कब नेगेटिव होता है, cos कब पॉजिटिव होता है? एनीवन? ओके, cos लेट्स 90 0, ओके ओके, ये तो आपको cos पता है। 180 -1. या जो आपका cos होता है, it always lies between -1 and +1. It can never go below -1, it can never go above +1. ठीक है, so let us look at two extremes. Cos कब होता है 1? cos 1 जब होता है, मतलब let's take angles which are less than 360 degree. cos of an किस एंगल पे 1 होता है? Obviously at 0 degree. In other words, जब ये cos का argument, I have not shown the argument here, cos of whatever it is, if that is 0 degree, if this is 0, आपका जो cos होता है that is equal to 1. In other words, it takes a maximum value. Now look here, यहाँ पर cos of theta नहीं है, यहाँ पर cos of theta minus tau है। थीटा के किस वैल्यू पे ये जो आर्गुमेंट है ये 0 हो जाएगा? Obviously when theta is equal to tau, tau minus tau is equal to 0, this cos has the maximum value. In other words, अगर आपके पास करंट, यहाँ पर आप देखो करंट फेजर ऐसा है, it is along the blue line. Blue line क्या है? Blue line मैंने अभी आपको बोला, it is a straight line passing through the origin making an angle of tau with respect to the positive real axis. अगर आपके पास करंट फेजर इस डायरेक्शन में है, वहां पर ये जो cos है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 मैक्सिमम वैल्यू है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू होगा तब tau का आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए जो आपके पास ये जो ब्लू कर्व होती है ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन, ये जो ब्लू कर्व है, ब्लू लाइन है इनफैक्ट, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क लाइन। आई होप दैट्स क्लियर। This is a line which makes an angle of tau with respect to the positive real axis when the phase difference between current and voltage is exactly equal to tau. When current leads voltage by an angle equal to tau, तब आपका जो टॉर्क होता है सिस्टम के अंदर that is maximum, because cos तब क्या हो जाएगा? tau minus tau, cos of tau minus tau is cos of 0, that is equal to 1. Is that clear? ठीक है, so if you look at अगर आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है along the blue line, then torque is maximum.
maximum कितना है? It is VPC IPC apparent power into +1, that is apparent power. Some multiplied by some constant. I am shown the constant equal to 1 here. On the other hand, अगर आपके पास current opposite direction में है, so for example, if the current is along this line, it is straight still on the blue line, but इसकी जो direction है that I have rotated by 180 degree. So if you look at the angle between voltage and current, it is not tau anymore. It is equal to tau plus 180 degree. ठीक है? So theta किसके बराबर है? It is not tau, but rather it is tau plus 180 degree. तब आप मुझे बोल सकते हो cos का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? If I put theta is equal to tau plus 180 degree, what is this cos का वैल्यू कितना होगा? Anyone? -1. Yeah, because theta minus tau will be 180. Cos of 180 is equal to -1. In other words, ये जो आपके पास ये maximum torque line है, ये minimum torque line भी है. Because minimum value of cos कितना है? That is equal to -1. Is that clear? Is that clear or not? So if your current is exactly oriented in this direction, ठीक है, along the torque line, तब आपके पास torque maximum है. That is some positive value, maximum positive value. बहुत ज्यादा torque produce होने का मतलब यह है कि जो आपका रिले है ना वो जल्दी ऑपरेट होता है, जैसे हमने देखा था in the case of an IDMT relay. On the other hand, if you look at this system, this configuration in which the current is exactly opposite to the torque line, their cos is minimum value is -1. So torque का मैग्नीट्यूड तो फिर से VPC ICC है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है. It is most negative. Relay will not operate along this configuration. So if we start, maybe I will draw here. If we start from this point, here I am getting ये जो हमारे पास मैं लाइनें बना रहा हूँ, it is parallel to this. ठीक है? Torque is maximum. If I start playing with the current, मैं करंट को यहाँ लाता हूँ, करंट को यहाँ लाता हूँ, करंट को यहाँ लाता हूँ, फाइनली करंट को यहाँ लाके यहाँ लाता हूँ in the opposite direction. इसे हम देख सकते हैं. Torque is minimum. It is maximum, minimum negative. So torque starts from positive and then becomes negative. कभी ना कभी torque zero भी बनेगी. मुझे कोई कह सकता है at what angle will torque be zero? It's very simple. You have to see what will be the argument of a cosine when cos will be zero. किस argument पे cosine zero बनता है? π/2. उसका मतलब ये है, if I put theta minus tau is equal to 90 degrees or π/2, theta is equal to 90 plus tau. वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आपका जो torque है ना, that becomes zero. So if this is tau, this is tau plus 180 degree. जो आपका ये वाला सिस्टम है, like this, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, it makes an angle of 90 degree with respect to the maximum torque line. So here आपके पास torque यहाँ zero बन रहा है on this line. So to the right of this line, torque is positive. To the left of this line, torque is negative. That's very, very important. Let me draw the figure again because it's quite important. ये हम आगे भी use करेंगे. Okay. We have a system like this. ये हमारे पास, if we take the voltage as a reference, this is voltage that you are getting from the potential transformer, step down करके. This is the torque line, maximum torque line, like this. Oops. And then there's the zero torque line. Zero torque line जो red होता है वो कैसे बना रहा हूँ? I'm just drawing a perpendicular to this. So let me label it. This is zero torque line. And this blue thing here is the maximum torque line.
along this direction, torque is maximum positive. Along this direction, torque is maximum negative, and along this red line, torque is zero. So अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में along here, ठीक है, यहाँ पर torque क्या है? This torque is positive, and if you observe it along here, torque is negative. जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बाउंड्री है रेड लाइन जहां पर टॉर्क एग्जैक्टली जीरो है. सो उससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारे पास ये टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं कर रहा खाली, और मैग्नीट्यूड और जो साइन है वो खाली डिपेंड नहीं कर रहा मतलब आपकी करंट और वोल्टेज के ऊपर. वो मोर इम्पोर्टेंटली डिपेंड करता है कि करंट की फेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. सो फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ सिचुएशन लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल सिस्टम में फॉल्ट आ गया. जब फॉल्ट आ जाता है आपकी वोल्टेजेस सुकड़ जाती हैं और आपकी जो करंट्स होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम विद रिस्पेक्ट टू योर सिस्टम मे बी फॉल्ट इज समवेयर अलोंग हियर. अगर आप देखोगे दिस इज द फॉल्ट करंट IF. लुक एट द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट करंट. इट इज इन दिस ग्रीन जोन. ग्रीन जोन में हमने देखा टॉर्क पॉजिटिव है. टॉर्क पॉजिटिव का मतलब है रिलेबल ट्रिप. ऑन द अदर हैंड अगर आप ये जो करंट है इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दोगे, so instead of being along here it is along here. ठीक है, let's call this IF dash. It is now instead of being in the green zone, you are now in the yellow zone where torque is negative. If torque is negative, relay will not trip. I hope that's understandable. ये अब आप बोलोगे सर इससे क्या मिला? Let's go back to where we started. ठीक है, if we have a current flow in this direction, we want our system to trip. On the other hand, if the current flow is reversed by 180 degrees, I don't want my system to trip. Is that clear? So that is in practice obtained by using a configuration like this. इसमें अगर आप देखोगे, for a given voltage, if the current reverses its direction, regardless of what happens to its magnitude, आपका जो relay है ना वो trip नहीं होगा. Is that clear? So yeah, let us see how this is. I mean, it's very commonly utilized. I'm so sorry. कहाँ गया मैं? अगर मुझे दिखाना होता है एट ये मेरे पास है कोई सर्किट ब्रेकर एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय अ नॉर्मल ओवर करंट रिले. अभी हमने देखा कि नॉर्मल ओवर करंट रिले और अब नॉर्मल ओवर करंट रिले में क्या फर्क है. अब नॉर्मल ओवर करंट रिले इज बेसिकली अ डायरेक्शनल ओवर करंट रिले जिसमें एक डायरेक्शनल सेंसिंग यूनिट भी है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, इसको in order to distinguish between the two on a single line diagram, we basically use this convention. अगर आप किसी ब्रेकर के ऊपर एक बाय डायरेक्शनल एरो देखोगे, इट मींस इट्स अ नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले यहाँ पर. On the other hand, if you have a system like this, look at the direction of the arrow. Direction of arrow is out of the bus. ये आपको बताता है कि यहाँ पर जो हमने रिले यूज किया हुआ है, नंबर 1 इट इज डायरेक्शनल, और किस डायरेक्शन में ये ट्रिप होगा व्हेन करंट फ्लो इज आउट ऑफ द बस जो हम चाहते हैं. आउट ऑफ द बस का मतलब है इफ देयर इज अ फॉल्ट हियर इट शुड ट्रिप, इफ देयर इज अ फॉल्ट समवेयर हियर कम से कम ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए, ये वाला सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, दिस वन, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी है. सो let me conclude by giving a simple example. Okay, it is something that I have lifted from your reference book, and it's quite a good example.
Okay, so let's call this bus number A. ये आपका है bus number B. ये आपका है bus number C. This is bus number D. हमने देखा कि each and every line section has to start and end in a circuit breaker. So let's do that. There will be a circuit breaker here. There will be a circuit breaker here. यहाँ भी होगा circuit breaker. यहाँ भी होगा circuit breaker. In the same way, line section CB will start and end in a circuit breaker. Same is true for line section BA or AB, जो भी आप कहना चाहते हो. ठीक है? Now, the question that I want to solve is, number one, जो हमारे पास यहाँ पर ये circuit breaker plus relay schemes हैं, इनमें से number one, कौन-कौन सा relay हमें directional रखना है? क्या सारे रिलेज हमें डायरेक्शनल रखने हैं? अगर हमने रखा भी सबके डायरेक्शनल तो मतलब उनका ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? रिमेंबर जो हमारे पास अभी तक हम रिले पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल डीटीओसी रिले, उसमें हमने देखा था समथिंग लाइक दिस. वी हैव अ जनरेटर हियर, देयर इज अ वन लाइन सेक्शन, देयर इज अनदर लाइन सेक्शन, यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है. So in the case of a DTOC relay, I am deliberately talking of a DTOC relay here because IDMT में थोड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशंस होते हैं. If the time of operation of this relay was 0.2, ये वाला रिले है अपना, इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी 0.2 प्लस मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल हमें रखना पड़ता है फॉर द पर्पसेस दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. So it is typically 0.3, 0.4, 0.5 seconds, whatever. Let's take a notional value of 0.5 seconds. So ये वाला रिले अगर ट्रिप होगा 0.2 में, जो बैकअप रिले है वो ट्रिप होना चाहिए 0.7. Is that clear? Let us see यहाँ पर क्या सिचुएशन है. Let me go for some numbering. Okay, so let's go counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लाइन सेक्शन आपके 4 हैं एंड जाहिर सी बात है सर्किट ब्रेकर 4 into 2 यानी कि 8 है. So let us see. Remember, there is a generator connected only at point A. It is still वो जो आपका वो सिस्टम नहीं था, जो हमने अभी तक सिस्टम देखा था, that was doubly fed. कहाँ गया ये? जैसे हमने स्टार्ट किया था डबली फैड. लेकिन आपका ये भी सिस्टम हो सकता है ना कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पर दूसरे जनरेटर होने के सिवाय आप ये सप्लाई यहाँ से उठा रही हो. वही ये सिस्टम है. स्टार्ट और एंड जो आप कहीं पर जाओगे आपको वही सेम सप्लाई पॉइंट मिलेगा. बाय द वे इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कोई कह सकता है? इट हैज अ वेरी स्पेशल नेम. एनीवन? सॉरी, yeah, ring main, ring feeder, जो भी आप कहना चाहते हो. Because if you look at this, if you start at any point, you are basically following a loop. आपको एक ring जैसी नजर आ रही है. Hopefully, if you can see this. So if you start from this point, you are following a ring. ठीक है, इसको हम ring feeder कहते हैं. जो क्या नाम है इसका, 33K वगैरह सिस्टम होते हैं. It is oftentimes it is ring. मतलब not in India that much, because India में ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है. बिकॉज टिपिकली वी डोंट हैव द रिलायबिलिटी ऑफ एंड एवरीथिंग, बट स्पेशली इन मतलब जो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वहां पर टिपिकली 33K वगैरह सिस्टम रिंग मेन होता है. क्योंकि आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, यू आर फीडिंग अ लोड एट दिस पॉइंट, देयर इज सम फॉल्ट हियर, लाइन सेक्शन 1, 2 आपका ट्रिप हो जाएगा. लेकिन ये जो लोड है उसको आप अब यहां से फीड कर सकते हो ना. सो एक किस्म से इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है. इवन इफ सम लाइंस आर ट्रिप्ड, लोड्स कंटिन्यू टू बी फेड. ऑन द अदर हैंड, ये जो आपका ये सिस्टम था सिंपल रेडियल सिस्टम, अगर ये लाइन सेक्शन आपका ट्रिप हो जाता है, दिस लोड गेट्स डिस्कनेक्टेड, इसको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, तो आपको लोड शेडिंग करनी है. रिंग मेन में वो प्रॉब्लम नहीं होती. मे हैव टू गो फॉर पार्शियल लोड शेडिंग, लेकिन कम से कम लोड का कुछ हिसाब सप्लाई कर रहे हो. बिकॉज यू हैव मोर देन वन वे ऑफ फीडिंग अ लोड. दिस लोड इज फेड डायरेक्टली थ्रू हियर, इट इज आल्सो फेड इनडायरेक्टली थ्रू हियर. ठीक है. सो लेट अस सी इफ देयर इज अ फॉल्ट हियर.
कोई मुझे कह सकता है विद रिस्पेक्ट टू फॉल्ट, विद रिस्पेक्ट टू बस ए, जो फॉल्ट करंट है इज दैट आउट ऑफ द बस और इनटू द बस? एनीवन? फॉल्ट मैंने लाइन सेक्शन ए बी में कहीं क्रिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्या नाम है इसका, जो बस ए है, विद रिस्पेक्ट टू दैट इज द फॉल्ट करंट आउट ऑफ द बस और इनटू द बस? हेलो, है ना? जाहिर सी बात है, फॉल्ट ऐसे फ्लो हो रहा है ना। अगर आप देखोगे, लुक एट दिस फॉल्ट, इट इज बीइंग फेड फ्रॉम दिस जनरेटर डायरेक्टली थ्रू सर्किट ब्रेकर बस ए एंड सर्किट ब्रेकर 1, ऐसे जा रहा है। इट इज आल्सो फेड इनडायरेक्टली लाइक दिस। ये भी तरीका है ना, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिकल पाथ है। सो एनीवे, if I change the location of this fault, for example, there is a fault somewhere here. I'm so sorry. If there is a fault somewhere here, with respect to this circuit breaker, sorry, with respect to bus A, fault currents kahan se flow ho rahi hai? Out of the bus or into the bus? With respect to bus A, if I have created a fault in the line section BC, fault currents कैसे flow हो रही है? Out of the bus or into the bus? Easy है यार। into the bus. Into the bus कैसे? सर BC वाला लाइन सेगमेंट है ना, ये C की तरफ जाएगा। नहीं, मैं बस A की बात कर रहा हूँ। सर बस A के रिस्पेक्ट में है आउट ऑफ द बस, है ना? At the moment I'm only talking about what happens, जो अगर फॉल्ट की लोकेशन मैंने चेंज की, पहले मैंने AB में फॉल्ट क्रिएट किया, फिर मैंने BC में फॉल्ट किया, विद रिस्पेक्ट टू बस A को क्या नजर आ रहा है? ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। ऐसे फॉल्ट करंट होगी, फीड हो रही है, ऐसी फॉल्ट करंट होगी, फीड हो रही है। इन आइदर केस फॉल्ट करंट्स विद रिस्पेक्ट टू बस A आर आउट ऑफ द बस। ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, आप फॉल्ट कहाँ क्रिएट करो, यहाँ क्रिएट करो, यहाँ क्रिएट करो, कहीं भी क्रिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू बस ए, फॉल्ट करंट्स आर यूनिडायरेक्शनल, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? बाय डायरेक्शनल रिले हम क्यों यूज कर रहे थे, या जो सॉरी डायरेक्शनल रिले हम क्यों यूज कर रहे थे? रीजन वाज दैट विद रिस्पेक्ट टू सम रिले, विद रिस्पेक्ट टू सम लोकेशन, फॉल्ट्स की दो पॉसिबल डायरेक्शंस थी। ऑन द अदर हैंड, इन दिस केस, at least for the relay plus circuit breaker 1 and 8, regardless of the location of the fault की direction same है। So why will we use a directional relay here? Directional relay हम तब use करते थे जब possibility थी कि current की direction locally reverse हो जाएगी, वो वैसा नहीं है। So हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम normal relays use करते हैं। These are normal DTOC relays, definite time over current relays. I hope that you understood that. We use a directional relay when there are two possibilities, left or right, up or down, into the bus, out of the bus. Because here, regardless of the location of the fault current, with respect to bus A, fault current is always out of the bus. We will not use a directional relay. अब आप बोलोगे सर why? Remember, जो directional relay होता है, उसमें आपको voltage information भी चाहिए, वरना आप reference कैसे create करोगे? Voltage information के लिए आपको क्या चाहिए? You need what is known as a potential transformer. On the other hand, जो बाकी आपके DTOC या जो भी IDMT रिलेज होते हैं, the only thing that you require is a current transformer. ठीक है? On the other hand, for the operation of a directional relay, you need both potential transformer information, you also need current transformer information. So you need two kinds of transformers. That obviously is more expensive. ठीक है? अगर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफार्मर, फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट बिकॉज यू वांट टू ऑप्टिमाइज ऑन योर कॉस्ट, you will try to minimize the number of directional relays that you are using in your system, because effectively आपका कॉस्ट डबल है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर के बजाय आपको दो सेंसिंग ट्रांसफार्मर यूज करने हैं। ठीक है। So moral of the story is, at bus location A, what is that bus? It is basically the bus to which you have connected the source. You don't need a potential transformer based relay. आपको simple current transformer based relay से काम चल जाता है। Let us see what happens here. यहाँ पर आप देखो, let us go back to the faults that we have simulated. Let's assume there is a fault here. Let's look at bus B now.
अगर फॉल्ट यहां पर होता है विद रिस्पेक्ट टू बस बी, रिमेंबर अल्टीमेटली फॉल्ट को सप्लाई कर रहा है ये जनरेटर, तो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो लुक एट बस बी, जो आपका सर्किट ब्रेकर 2 है, ये जो आपकी लाइन सेक्शन है ना ए बी सर्किट ब्रेकर 2 को, उसको नजर आ रहा है फॉल्ट करंट इज मूविंग आउट ऑफ द बस, यहां देखो डायरेक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द बस इनटू लाइन सेक्शन बी ए। बट सी व्हाट 3 इज सीइंग, उसको क्या नजर आ रहा है? रिमेंबर ये फॉल्ट करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, एंड 3 को ऐसे फ्लो हो रही है। सो 3 को नजर क्या आ रहा है? फॉल्ट करंट इज इनटू द बस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ यहां पर आप देखो, इफ देयर इज अ फॉल्ट हियर इन द लाइन सेक्शन ए बी, कौन कौन सा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए? शाबाश। If there is a fault in line section AB, which breaker should trip? कौन कौन सा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए? 1 and 2. 1 and 2. On the other hand, अगर आपने यहाँ पर सिंपल ओवर करंट रिलेज इस्तेमाल किए, 3 भी आपका ट्रिप हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पर ओवर करंट सिंपल रिलेज यूज नहीं करते हैं, we use directional relays both at in fact not both at bus B by the same logic at bus C by the same logic at bus D. Why? Because हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास फॉल्ट से यहाँ पर है कहीं पर very close to bus B but in line section AB, only breaker 2 should trip and 3 should not trip. वो कब होगा? Because remember, if there is a fault somewhere here, with respect to breaker B, the fault is into the bus. हम चाहते हैं breaker B restrained हो जाए। अगर हमने यहाँ directional use किया, we will achieve that. So let me get rid of this fault direction. हम क्या करते हैं? We will put a, let me show it here. यहाँ पर जो ये रिले है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। In the same way, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। In the same way, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। So as you can see for yourself, at the bus A, where the generator is connected or the whatever power system is connected, ये नहीं है कि एक जनरेटर है, ये rest of the power system है जहां से सप्लाई आ रही है, वहां पर हम नॉर्मल रिलेज यूज करेंगे, ओवर करंट रिलेज। लेकिन जहां पर भी आपके लोड्स कनेक्टेड है, वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? डायरेक्शनल रिलेज। अगेन डायरेक्शन क्या है? इट इज आउट ऑफ द बस। इफ द फॉल्ट इज, इसका मतलब क्या है? अगर फॉल्ट करंट आउट ऑफ द बस है तो ट्रिप होगा, अगर इनटू द बस है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ठीक है, तब ट्रिप नहीं होगा। वो हमने देखा कि उसके लिए हमें सिंपल डायरेक्शनल रिले से काम चल जाता है। बट अगेन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, it is merely the start of the story. Why? Basically, remember, ये हमारे पास ये नॉर्मल DTOC रिलेज है और ये आपके पास डायरेक्शनल DTOC रिलेज है, लेकिन आपको टाइम सेटिंग तो भी करनी है ना। टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना होगा? टाइम ऑफ ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टाइम ऑफ ऑपरेशन के लिए होना चाहिए कि हमारे पास एक तो प्राइमरी रिलेज को टाइम मिले कि ऑपरेट हो, नंबर 2 ये भी होना चाहिए कि जो आपके पास बैकअप रिले है उसको कुछ डिले के बाद ऑपरेशन हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका रिले ऑपरेट होगा प्राइमरी, बैकअप रिले नहीं ऑपरेट होना चाहिए। हमने यहाँ देखा था, अगर यहाँ पर टाइम ऑफ ऑपरेशन 0.2 है, यहाँ पर हम 0.2 रखेंगे क्लोजर टू द सप्लाई, सॉरी 0.7 रखेंगे ताकि बीच में कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल हो। सो आई विल जस्ट गिव यू द रिजल्ट एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं वेरी सिंपल प्रोसीजर है। व्हाट आई विल डू इज आई विल लुक एट द 2 breakers which are connected to the bus to which the power supply is connected. So I'm not talking about breaker 1 and 8. I'm talking about breaker 2 and 7. Is that clear? मैं क्या करूंगा? इनका टाइम ऑफ ऑपरेशन में स्मॉलेस्ट रखता हूँ। शायद पिछले वाले में भी कुछ 0.1 था, so I will keep this 0.1. I will keep this 0.1. ठीक है? So instead of going directly to the supply, मैं इस 0.1 वाले ब्रेकर को, जो ये डाउनस्ट्रीम रिले यहाँ पर है, हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हम जो डाउनस्ट्रीम रिले होता है अपस्ट्रीम जाने की कोशिश करते हैं। जो जो हमें रिले मिलता है अपस्ट्रीम, उसको 0.5 ऐड करते जाएंगे। सो लेट अस सी, अगर ये 0.5 है, रिमेंबर इसकी फॉल्ट डायरेक्शन ऐसी है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। लेट्स अज्यूम देयर इज अ फॉल्ट हियर, ठीक है। ये ब्रेकर आपका ट्रिप होगा, जो ब्रेकर 2 है। ब्रेकर 3 आपका ट्रिप नहीं होगा, बिकॉज अगर रिमेंबर उस सूरत हाल में क्या होता है, फॉल्ट करंट फ्रॉम दिस साइड ऐसे फ्लो हो रही है। सो जो ब्रेकर 3 है
उसको नजर आ रही है फॉल्ट इनटू द बस, इट इज अ डायरेक्शनल रिले, इट विल नॉट ट्रिप। तो हमें ब्रेकर 3 को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड लुक एट ब्रेकर 4। Breaker 4, with respect to breaker 4, fault current is flowing like this. It is flowing out of the bus number C. So ये भी trip हो सकता है। So again same principle, अगर ये breaker आपका trip होगा, इसको आप इसका time of operation plus coordination time interval add करो, so this is 0.6. In the same way, अगर यहाँ पर fault होता है, ये 5 breaker तो trip नहीं होगा, लेकिन 6 आपका trip हो सकता है, because ऐसे flow होगा। इसका time of operation अगर 0.6 है, you will keep it 1.1. ठीक है, you will continue the same process। अगर 0.1 है, ये रखोगे आप 0.6 या आप रखोगे 1.1। ठीक है, now आपके लिए क्वेश्चन है, if this is 0.6, ये है 1.1, ये तो ट्रिप नहीं होगा, तो ये होना चाहिए 1.6, and similarly this will also be 1.6। ठीक है, so अगर आप I will maybe leave that as an exercise। इसमें आप ये जो सिस्टम है, you can have 4 लाइन सेक्शंस हैं। 4 लाइन सेक्शन का मतलब ये है कि 4 टाइप के आपके लाइन फॉल्ट्स हो सकते हैं। आप हर एक लाइन फॉल्ट में देखो कौन कौन सा ब्रेकर ट्रिप होगा। सो फॉर एग्जांपल, a very simple problem that I can ask in the examination would be, if there is a fault in line section AB, इनमें से कौन कौन सा ब्रेकर ट्रिप होगा कितने वक्त के बाद। And similarly for if there is a fault in line section BC or CD or AD or whatever। ठीक है, any questions? Otherwise I will end the class। कोई question? Hello? सर रिपीट किए लास्ट वाला पार्ट। मैंने कहा था कि ये जो मैंने सिस्टम आपको डिजाइन करके दिया ना, डिजाइन करने का मतलब ये है कि मैंने आपको एट एवरी लोकेशन बोला रिले कौन कौन सा है, डायरेक्शनल या क्या नाम है इसका, नॉर्मल, ओवर करंट, एंड ये भी मैंने आपको बोला कि हर एक पॉइंट पे टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो आप ये एक असाइनमेंट कर लेना, खुद ही कर लेना, या आंसर क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ एग्जामिनेशन में कि अगर मेरे पास फॉल्ट लेट्स अज्यूम इज इन लाइन सेक्शन ए बी, कौन कौन सा रिले ट्रिप होगा, कितने टाइम में आपका फॉल्ट क्लियर होगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ फॉल्ट इन लाइन सेक्शन बी सी और सी डी और व्हाटएवर, कौन कौन सा ब्रेकर ट्रिप होगा, कितने टाइम में ट्रिप होगा और कितने टाइम में फॉल्ट क्लियर होगा, बोथ फॉर प्राइमरी एज वेल एज बैकअप बाय द वे प्रोटेक्शन। इज दैट क्लियर? ये हो सकता है कि प्राइमरी रिले आपकी फेल हो जाए, तो बैकअप रिले को क्लियर करने में कितना टाइम मिलेगा। जस्ट लाइक इन दिस केस, ये जो हमारे पास रेडियल सिस्टम है, इफ देयर इज अ फॉल्ट हियर, प्राइमरी सिस्टम विल क्लियर द फॉल्ट इन 0.2 seconds। इफ प्राइमरी फेल्स, बैकअप विल क्लियर इन 0.7। ठीक है, सो ओके देन we'll meet in the next class। Let me end the presentation।